downstream cutoff that is being decided on the basis of, right, the scour, and the downstream cutoff that is being decided on the basis of the exit gradient also. So that component we have already discussed about the exit gradient. So this depth that you have to decide on the basis of the scour and the exit gradient, right? As per the codal provision, okay, the scour below the HFL in the downstream, this is equal to 1.25 R, 1.25 R, okay, and here the concentration factor that is being considered, right? And if you are not taking 20% concentration here, okay, in that case, in place of 1.25, you can take a factor 2, right? But if you are taking, let us say, concentration factor, in that case, you have to take 1.25. Likewise, in the upstream, if you have, this is the HFL, right? Then from this consideration of the scour, right, this depth that is equal to R, if you are taking a concentration factor. If you are not taking a concentration factor, in that case, it is documented in the literature that you can take 1.5 or 1.25 to 1.5 R. Okay, right? And how do you calculate this R? Depending, that is related to the looseness factor. So if the looseness factor is less than 1, you have to use the unit discharge equation. And if the looseness factor, this LF, okay, if that is more than 1, then you have to use the total discharge equation. So that one we had discussed, right? And please understand this, because this is being provided in almost all the structure, okay, in the upstream and the downstream, right? The cutoff, okay. Then coming to the total floor and the thickness. What would be the total floor and the thickness, right? So this total floor that is being decided, okay, on the basis of the exit gradient. I think if you can recall, you see this is D and this one is B, okay. This is D and this one is B, okay. So now this is the floor length. B is the floor length, and you have to play with the B and D, right? B and D, okay, from the exit gradient point of view, right? If you keep, see, this is alpha, B by D. So if you take a large value of the D, in that case, the B that will be less. And if you take large value of the B, in that case, the D that will be less, okay, right? So that one you have to play, right, so that you can optimize the size, okay. One thing more that is important in this case is if you provide a very deep downstream cutoff, okay, in that case your floor thickness that will increase. So if you draw, let us say I am taking a very simple case, I am taking a horizontal floor, right, and this is the downstream sheet pile or the downstream cutoff. The flow is in this direction, and below the you see, let us say here also we have a small cutoff, okay. In that case, your flow that will go like this, the flow that will go like this, right? The flow, subsurface flow that will go like this, right? This one is the bed in the downstream. Now, see, let us say we have to fix the thickness here of the floor. What should be the thickness? And you had seen that this thickness is equal to H by G minus 1. What is H? H is the hydraulic gradient. So here is the, let us say you have the gate, and the hydraulic gradient line is coming like this. Hydraulic gradient line that will go like this, okay. Then
at this location, from the top you have this H, so you can get here what should be the thickness, what should be the thickness of the floor, right? Now what happens that, right, while playing with the alpha, while playing with this B and D, you have to be careful, okay? Careful in the sense that if you provide a very long depth of the downstream cutoff, in that case, what happens that your pressure here that will increase, okay? Because this line, this point that will rise. So let me draw another color here. This will rise, okay? And you see harmonic gradient line that will go like this. And by doing that, this your H will increase and your thickness will increase, right? Virtually a deep cutoff in the downstream that push the flow in the upward direction, okay? And that's why the pressure here that will increase. So it is not advisable to provide a very long and deep downstream cutoff, right? Just to reduce the length of the barrage, okay, right? So you have to play with this. And of course, let us say from the scour consideration is this much is the depth is coming. So you have to take a judgment and you have to fix a relatively a short depth, okay, in the downstream, so that this extra pressure that is built up, okay, that can be reduced. Now, the question is, if we increase the depth of the upstream sheet pile, in that case, the pressure at this point that will increase or decrease. This is a quiz question. I repeat the question. Let us say the downstream sheet pile depth that is same, no change in the downstream sheet pile depth, okay, right? But let us say this is the downstream sheet pile depth, but here in the upstream we have increased the depth of the upstream sheet pile at the cutoff, okay? So by increasing this, the pressure at this point that will increase or decrease. You answer this question and tell me your name. I will not proceed unless or until you answer this question, whether that is correct or wrong. जो ड्राइंग आई थी देना मुझे जरा। पहले 3 आई थी, उसके बाद फिर 7 आई है। I said, if you not answer this question, I will not proceed. I mean, the answer may be wrong or correct, that is immaterial.
It means that you are not present in the class, so unnecessary I am engaging सर this. क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? ये कोई तरीका है आपको क्लास जो है मैनेज करने का? बताइए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कैसे कैसे होगा ये? मैंने क्वेश्चन ये आपको क्वेश्चन ये रेज किया था कि डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल की डेप्थ हमने फिक्स कर दी, राइट? यस सर। और अप स्ट्रीम की शीट पाइल की लेंथ डेप्थ हमने बढ़ा दी। तो ये जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, इसका क्या होगा यहाँ पे? इसकी डेप्थ बढ़ाने से मैं इसको कह देता हूं, बेटा से ये इसकी डेप्थ को मैंने कह दिया D1, राइट? और ये डाउन स्ट्रीम की डेप्थ पाइल शीट पाइल डेप्थ जो है फिक्स है, ये दिस वन इज फिक्स्ड। तो यहाँ का जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, प्रेशर लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, राइट? सर कम तो हो दिस जाएगा। इसको बढ़ाने से कम हो जाएगा, है ना? यस सर। आप दास बोल रहे हो ना? ए सर। हाँ, यहां से बढ़ जाए कम हो जाएगा, यानी अप स्ट्रीम की शीट पाइल की डेप्थ आप बढ़ाएंगे तो आपको एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, आपका जो है यहाँ पे अपलिफ्ट कम हो जाएगा। लेकिन डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल की डेप्थ बढ़ाने से आपकी यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाएगी, राइट? यस। तो ये चीज आपको देखना होगा, अननेसेसरी आपको डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल की डेप्थ ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल जो है आपके लिए मैंडेटरी है, ये प्रोवाइड करना ही करना है। अप स्ट्रीम की आप प्रोवाइड करें या ना करें या नॉमिनल कर दें, लेकिन डाउन स्ट्रीम की आपको करनी। तो ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस आपको अप स्ट्रीम की शीट पाइल प्रोवाइड करने से आपकी जो है ये थिकनेस यहाँ पे कम हो जाती है, राइट? और कभी कभी ये होता है कि अगर आपने इंटरमीडिएट पाइल प्रोवाइड कर दिया, मान लीजिए कि इंटरमीडिएट पाइल आपने प्रोवाइड कर दी, राइट? के तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना, वो भी डिपेंड करती है आपकी D1 और D2 पे, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल। अगर ये छोटा है, मान लीजिए कि मैं इसको D3 कहता हूं, राइट? तो D3 ये जो है आपको D3 इज वेरी लेस देन ओके D1 एंड D2। क्या इफेक्ट होगा इसका? अगर D3 बहुत छोटा है D1 और D2 के रेस्पेक्ट में, तो इसका प्रेजेंस जो है नेग्लिजिबल है, जो कि आपकी जो फ्लो लाइंस है वो फ्लो लाइंस आपकी ऐसे जाएंगी, राइट? ये आपकी शीट पाइल डाउन स्ट्रीम की मान लीजिए कि यहां तक है, तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है दैट इज नेग्लिजिबल, राइट? Unless or until you increase the depth of this downstream intermediate pile so that the flow that will go like this. I mean, the concept of this creep length. तो आया समझ में आपको ये? यस सर। ओके, ये जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपकी सिर्फ सब सरफेस फ्लो कंसिडरेशन से ही नहीं निकाली जाती, ये सरफेस फ्लो कंसिडरेशन से भी निकाली जाती, ठीक है, राइट? यानी आपका नो फ्लो कंडीशन में ही नहीं बल्कि फ्लो कंडीशंस में भी आपको निकाली जाती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फ्लो कंडीशन में वो कैसे निकाली जाती है, राइट? एक स्लाइड मुझे इंडक्ट करने दीजिए और इसको समझिए। तो ये जो है एक बैराज का प्रोफाइल हो गया, ये डाउन स्ट्रीम की कट ऑफ हो गई, अप स्ट्रीम की कट ऑफ, राइट? यहां हमने गेट प्रोवाइड किया,
दिस इज गेट। नो फ्लो कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अप स्ट्रीम में आपका वाटर जो है FRL पे है या पॉन्ड लेवल पे, ये फिक्स्ड है, राइट। और डाउन स्ट्रीम में हम ये मानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में आपका जो वाटर लेवल है ये डाउन स्ट्रीम के बेड पे है। ये अप स्ट्रीम का बेड हो गया, ये डाउन स्ट्रीम का बेड, राइट। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आपका जो हेड है, हेड जो है जो एक्ट कर रहा है इस पे, वो HA होगा, राइट। दिस इज नो फ्लो कंडीशन। तो अगर किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से आई एम सेइंग दिस इज द पॉइंट A, यहां पे अगर आपको अपलिफ्ट निकालना है, राइट, तो आप जो है इस हेड के हिसाब से इसको निकाल लेंगे, ओके। और इस केस में जो आपकी HGL होगी, जो HGL लाइन होगी, वो मैं आपको रेड कलर से प्लॉट करता हूं। यहाँ पे ड्रॉप होगा और उसके बाद जो है आपको यूं जाएगी और फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो ये HGL जो है, लेट मी राइट हियर, दिस इज द HGL, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑफ द सब सरफेस फ्लो अंडर द नो फ्लो कंडीशन, यानी पानी जो है इसके थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है, ओके, राइट। तो ये जो है, एंड दिस इज योर पॉन्ड लेवल, दिस इज योर पॉन्ड लेवल, राइट। लेकिन जब आपका दूसरा एक कंडीशन है कि इसको, इसकी थिकनेस को निकालने के लिए हम फ्लो कंडीशन भी कंसीडर करते हैं, उसमें भी चेक करते हैं, राइट। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं कि इसको, या मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये इसी बैराज को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं और फ्लो कंडीशन को आपको बताता हूं कि फ्लो कंडीशन में इसको कैसे करते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम की शीट पाइल, ये अप स्ट्रीम की शीट पाइल, ये गेट हो गया, राइट। लेकिन इस केस में ये गेट जो है आपका उठा हुआ है और आपका जो डिस्चार्ज इसके थ्रू पास हो रहा है, जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो इसका डिजाइन डिस्चार्ज, राइट। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि अप स्ट्रीम में आपका HFL ये होगा, दिस इज योर HFL इन द अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की HFL मान लीजिए आपकी ये, दिस इज द डाउन स्ट्रीम HFL, राइट। तो जो आपकी सब सरफेस फ्लो है, यानी जो फ्लो इसके नीचे से जा रही है, वो कितनी हेड डिफरेंस है उसमें, ये सब सरफेस फ्लो आपकी किस हेड डिफरेंस की वजह से हो रही है, इन दोनों के हेड डिफरेंस की वजह से, अप स्ट्रीम HFL माइनस डाउन स्ट्रीम HFL, राइट, यही तो होगी। ये मैं थोड़ा और नीचे प्लॉट करता हूं, ये डाउन स्ट्रीम का HFL है, डाउन स्ट्रीम HFL, तो ये सब सरफेस फ्लो जो होगा वो किस हेड के अगेंस्ट में होगा, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, कहाँ से? हाँ हाँ जतिन, मैं क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ 5 बजे, ओके। तो इन दोनों के डिफरेंस हो, और अब जो है फ्लो कंडीशन में मैं अगर HGL लाइन सब सरफेस फ्लो का ड्रॉ करता हूं, राइट, तो क्या होगा आपका, ये ड्रॉप होगी, राइट। और यहां पे अब यहां से नहीं होगा, अब इसके बेड से नहीं होगा, क्योंकि आपका वाटर लेवल यहां पे है, तो ये थोड़ी सी राइज होगी और ये आपकी HGL हो जाएगी। तो आपकी फ्लो कंडीशन में HGL जो है राइज कर गई, राइट, ओके। लेकिन जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है, जो वाटर सरफेस प्रोफाइल है, लेट अस से वाटर सरफेस प्रोफाइल आपकी ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, राइट। तो वाटर लेवल से अगर हम देखें, यहां से देखें, तो ये
इतना जो है अपलिफ्ट आपको इस पॉइंट पे लग रहा है, तो अपलिफ्ट जो यहाँ पे लग रहा है, मान लीजिए कि मैं इसको स्मॉल h लिखता हूं, तो गामा h जो है आपको अपलिफ्ट लग रही है। टोटल अपलिफ्ट जो है वो यहां से यहां तक है, राइट, जिसमें इतना पानी है, राइट, इसलिए जो है आपकी अपलिफ्ट जो है वो माइनस हो गई, तो बचा इतना, राइट। लेकिन ये टोटल गामा एच नहीं लेते हैं, उसकी वजह ये है कि फ्लो जो आती है वो यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने की वजह से इस पे एक डायनेमिक फोर्स लगता है इस फ्लोर पे। तो ये जो है, जो हम इसको थिकनेस निकालने के लिए जो कंसिडर करते हैं, दैट इज 2/3, यानी उसका 2/3, राइट, ही सिर्फ जो है इसकी थिकनेस निकालने के लिए करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका नो फ्लो कंडीशन में, राइट, नो फ्लो कंडीशन में आपको ज्यादा थिकनेस आए और फ्लो कंडीशन में आपको कम आए, राइट, हर एक केस में। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, फ्लो कंडीशन में भी और नो फ्लो कंडीशन में भी, राइट, दोनों कंडीशन में आपको चेक करनी पड़ेगी। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको आप सावधानी से देखिए। ये हाइड्रोलिक जंप बना, तो हाइड्रोलिक जंप बनेगा तो ये आपकी y1 हो गई, राइट, तो y1 आपको मालूम है, और ये चीज मालूम है, यहाँ पे क्या एलिवेशन है, उसमें से y1 माइनस कर दीजिए, जो ऑर्डिनेट आता है उसका 2/3 ले लीजिए, राइट। वही चीज हमने यहाँ पे स्लाइड में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये नो फ्लो कंडीशन है, नो फ्लो, और ये जो है आपका फ्लो कंडीशन। अब मुझे बताइए अगर कोई क्वेश्चन है। तो दोनों के केस में आपको चेक करना पड़ेगा और थिकनेस उसके हिसाब से निकालनी पड़ेगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये एक डिजाइन मेथोडोलॉजी है, चाहे हम बैराज डिजाइन करें या रेगुलेटर डिजाइन करें या फॉल्ट डिजाइन करें, हर एक के केस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल है ना। तो आप इसके अलावा जब हम हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर डिस्कस करेंगे तो सिर्फ हम एक अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे और चीजें सब यही हो। तो इसलिए इसको समझना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर है? यस सर। ओके। ऐसा है कि जो आपका, जैसे मैंने डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ए पार्ट ऑफ द डाउन स्ट्रीम फ्लो प्रोड्यूस करूंगा इसमें। मान लीजिए कि आपकी डाउन स्ट्रीम की फ्लोर ये है, राइट, डाउन स्ट्रीम की फ्लोर आपकी ये है, राइट, इसको मोटा कर दिया हमने, और ये जो है और मोटा कर दिया, और ये कट ऑफ है, राइट, और ये जो है आपका बेड लेवल, दिस इज बेड लेवल। ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, ये डाउन स्ट्रीम की बात, राइट। फ्लो जो है यूं हो गई। तो ये जो पक्का फ्लोर है, राइट, पक्का फ्लोर के डाउन स्ट्रीम में हम ऐसे ही नहीं छोड़ते, इसमें लूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो लूज प्रोटेक्शन जो है, इसमें दो चीजों का होता है। एक होता है सीसी ब्लॉक, राइट, तो प्री कास्ट जो है या कास्ट इन सीटू इन जनरल, दैट इज ए प्री कास्ट, राइट, यहाँ पे सीसी ब्लॉक जो है प्रोवाइड करते हैं। ये सीसी ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं इन जनरल। जो इनकी डायमेंशन होती है सीसी ब्लॉक्स की, राइट, वो जो है आपका 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 0.9 मीटर, ये डायमेंशन होती है। इन सीसी ब्लॉक के बीच में ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग जो है आप लगभग 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, यानी 100 mm की ओपनिंग जो है रखी जा सकती है, राइट। ये सीसी ब्लॉक्स जो हैं आपके फिल्टर पे प्लेस किए जाते हैं, राइट। उसकी वजह ये है कि जो आपका
ये फिल्टर जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये फिल्टर की लेयर है, दिस इज ए फिल्टर लेयर, राइट। चूंकि जो पानी यहां से जा रहा है नीचे से, जो पानी यहां से जा रहा है वो यहाँ के जो सब ग्रेड सॉइल है उसको डिसलॉस ना करे, राइट, और वो वॉश आउट ना हो, तो इसलिए एक फिल्टर यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और चूंकि ये फ्लो जो है नीचे से ऊपर होता है, इसलिए इन जनरल इस फिल्टर को इन्वर्टेड फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस फिल्टर की क्या ग्रेडेशन होनी चाहिए, राइट। आजकल जियो टेक्सटाइल, जियो फैब्रिक्स फिल्टर्स भी आती हैं, वो भी लगाई जा सकती है, और सेंड फिल्टर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद जो अरेंजमेंट होती है वो है, आपको एक टो वॉल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये टो वॉल यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, दिस इज ए टो वॉल। ये कोई जरूरी नहीं है इस टो वॉल को कि ये टो वॉल जो है आपको जितनी एंटिसिपेटेड स्कावर है वहां तक ये जाए, राइट। तो ये स्टोन मशीनरी हो सकती है, ब्रिक मशीनरी हो सकती है, राइट। ये टो वॉल जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके डाउन स्ट्रीम में, राइट, बोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉन्चिंग एप्रन। ये बोल्डर्स जो है डाउन स्ट्रीम में अप टू ए सर्टेन लेंथ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिसको कहा जाता है, इसके नीचे कोई फिल्टर नहीं होता, इसको हम कहते हैं लॉन्चिंग एप्रन। We say this one as a launching apron, okay, right। तो इसका जो डिजाइन है लॉन्चिंग एप्रन का, लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, प्लीज लेट मी नो so that I can proceed for the design of the launching apron. Yes, please. तो ये जो लॉन्चिंग एप्रन का डिजाइन है, इसकी हम बात करते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। No, sir. ओके, तो नाउ वी आर प्रोवाइडिंग हियर ए टो वॉल। ये टो वॉल से मैं शुरू कर रहा हूं, ओके, राइट। एंड दिस इज द बेड लेवल इन द डाउन स्ट्रीम। यही चीजें अप स्ट्रीम में भी होंगी, फ्लो इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस दैट, you see, because this is a loose soil, right, loose soil here, there would be a scour, and let us say that a scour here is like this. So what is the maximum scour here is from the bed is D. This is a capital D is the maximum scour, and this scour you can get, okay, from the scour depth equation that we have discussed for the downstream and upstream cutoff, right? Okay, with the concentration factor and also without the concentration factor. Means that without the concentration factor we can take 2R from the HFL. So here is the HFL, so we can take the 2R, that will give us the maximum deepest scour level. So we can get the value of the D. Okay. Now you see this hole that is dangerous, because if that will move in the upstream, in that case your structure, I mean the first CC block that will be washed out, then the structure may be also damaged. Okay. So this slope, this is to be protected. This one slope that is to be protected. It is assumed that this slope here, okay, this is slope depending on the soil, right. This slope may be 1:1 vertical, 1:1.5 horizontal, or may be taken as 1 vertical and 2 horizontal, okay. So depending on the soil, you can consider this one is 1:1.5 and 1:2, right. Now
see here, to protect this surface, to protect this surface, what is to be done is we have to put the boulders here. We have to put the boulders, right? This is the boulders, right? That may be in the the 2 layers or the 3 layers, whatever is. And the thickness of this boulder, this T, this thickness is 1.25 times of the T, and this T is equal to 0.042.06 Q to the power 1 by, I think, 3. Just 1 minute. Yes, 1 by 3, right? In the SI system. Okay. So you can get the value of the T. In general, for a small rivers, we consider a coefficient 0.06, and for the large river, we consider the coefficient 0.04 to get the T. Means that to protect this one, okay, the thickness of the boulders that are to be provided, that should be 1.25 T. But you see, at the time of the construction, such hole has not developed. Okay. So what is being done is this volume, the volume of the boulders that is required, okay, right, to protect this surface, this much volume of the boulders that are put on the unlaunch condition. This is the launch condition. ये launch हो चुका है. This is launch condition, right? तो ये बजाय यहां रखने के, इसको जो है, अब मैं इसको रब कर देता हूं. ये जो है एंटिसिपेटेड स्कावर है. तो बजाय वहां रखने के, चूंकि स्कावर ये डेवलप नहीं हुआ है, तो बोल्डर्स को यहां पे रख दिया जाता है. यहाँ पे बोल्डर्स को प्लेस कर दी जाती है. और कितनी डिस्टेंस में होती है ये डिस्टेंस होता है 1.5 डी, राइट? और जब थिकनेस आप कैलकुलेट करेंगे 1:1.5 से, तो यहाँ पे जो थिकनेस आएगी, दिस थिकनेस विल कम 1.8 you see this T, right? तो ये थिकनेस यहाँ पे, चूंकि ये डेवलप नहीं हुआ है आपका, मैं इसको रब कर देता हूं, ये डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया जाता है 1.5 डी, और इसकी थिकनेस जो है 1.8 डी. आप इसको निकाल सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप, राइट? तो जैसे जैसे इसमें स्कावर डेवलप होगा, जैसे जैसे स्कावर ये डेवलप होगा, मान लीजिए ये स्कावर डेवलप हुआ, ये लॉन्च करेगा, ये डेवलप हुआ, ये लॉन्च करेगा. तो अगर कहीं फील्ड में अगर ये एप्रन जो है लॉन्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फेल कर गया, वो काम कर रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, यानी बहुत सक्सेसफुली वो अपना काम कर रहा है. तो इसमें जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है आपका लॉन्चिंग एप्रन डैमेज हो गया. ओके, राइट? I think this is 1.8686. So have you understood this launching apron concept? Yes, sir. यही कंसेप्ट आपको अपस्ट्रीम में होता है लॉन्चिंग एप्रन का, है ना? बस उसकी जो स्कावर डेप्थ होती है वो डिफरेंट होती है. तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया था, ये थिकनेस का, ये थिकनेस होगी, ये लॉन्च कंडीशन में 1.25, और ये थिकनेस जो है अनलॉन्च कंडीशन में 1.86 की आती है. मैंने आपको बताया कि 1.5 डी में करते हैं. सीसी ब्लॉक्स जो हैं, जो कोड में दिया गया है, 1.5 से 2 डी तक जो है आपको प्रोवाइड की जाती है. तो ये जो है आपकी लॉन्च कंडीशन में है, ये अनलॉन्च कंडीशन में है. तो जहां पे भी कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, जहां पे ये है कि आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्कावर होगा, लॉन्चिंग एप्रन वहां पे प्रोवाइड की जाती है. अब हम बात करेंगे इस फिल्टर की.
ये जो फिल्टर है, हो सकता है आपने सॉइल मैकेनिक्स में यानी जियो टेक्निकल में आपने ये पढ़ा होगा, फिल्टर का टरजागी कंसेप्ट जो है आपने पढ़ी होगी, राइट। तो ये फिल्टर जो है आपको ऐसे प्रोवाइड की जाती है ताकि नीचे की मटेरियल जो है आपकी वॉश ना हो, राइट। और उसके लिए अच्छा, दूसरी ये चीज है कि जो आप बोल्डर प्लेस कर रहे हैं, ये जो बोल्डर प्लेस कर रहे हैं, इस बोल्डर का साइज क्या होगा, इस बोल्डर की साइज क्या होगी, राइट। तो जो कोडल प्रोविजन है यानी जो आईएस कोड है, उसके हिसाब से आपका जो है ये 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, should not be less than this and should not be less than 40 kg, यानी एक ब्लॉक जो है 40 kg से कम का नहीं होना चाहिए, राइट। और अगर इसकी साइज जो है आप ये इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जो कि वेलोसिटी से रिलेटेड है। यू कैन यूज दिस इक्वेशन एंड यू कैन गेट द साइज ऑफ द बोल्डर, ओके। तो हियर द कोएफिशिएंट इज 0.023 टू 0.046, वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, और आप इसे डी निकाल सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द डिजाइन ऑफ द फिल्टर, मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी जो लेयर है, इसमें ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये लेयर है आपकी फिल्टर की, और ये जो है सब ग्रेड सॉइल है, दिस इज सब ग्रेड सॉइल और सब सॉइल, राइट। तो ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर को ऐसे डिजाइन किया जाता है, इसकी ग्रेडेशन को ऐसे फिक्स की जाती है ताकि ये सब सॉइल जो है, जो कि पानी तो यहां से निकल रहा है, तो ये मटेरियल वॉश आउट ना हो, यानी सब सॉइल आपकी वॉश आउट ना हो, राइट। और उसके लिए ये क्राइटेरिया आपको है जो मैंने बताया था कि D15 ऑफ द फिल्टर डिवाइड बाय D85 ऑफ द बेस, ये 5 से कम होना चाहिए। उसी तरीके से जो है D15 ऑफ द फिल्टर बाय D15 ऑफ द बेस, ये 4 और 20 के बीच में होना चाहिए, और ये ऐसा। और एक चीज इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये पैरेलल होनी चाहिए, यानी ये आपका बेस है, दिस इज योर बेस, राइट। और जो पहला फिल्टर है F1 वो ये है, दूसरा फिल्टर है आपका वो ये है, ये सब जो है इनके पैरेलल होने चाहिए, राइट। तो यू कैन सी हियर इज ए वन डिजाइन कि D15 जो है बेस का ये है, तो D15 ऑफ द फिल्टर F1 ये निकाला गया, D15 ऑफ द फिल्टर F2 ये निकाला गया, उसी तरीके से ये सब चीजें निकाली। तो ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, राइट, ये कंसेप्ट जो है आपको सारे प्रोजेक्ट्स में, सारे वर्क्स में, आपको मोस्ट ऑफ द वर्क्स में जो है आपको अप्लीकेबल है, राइट। और शीट पाइल, जहां तक बात होती है कि जो ये शीट पाइल होती है डाउन स्ट्रीम की, एक तो कट ऑफ होता है ओपन कट ऑफ, है ना। ओपन कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आपकी सॉइल को वहां से हटाया, राइट, और आपने जो है ये कट ऑफ डाल दी, ये कट ऑफ डाल दी और ये फ्लो डाल दिया, राइट, ओके। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई, दिस इज द ओपन कट ऑफ। लेकिन अगर डेप्थ ज्यादा होती है, मान लीजिए 30 मीटर 34 मीटर, तो उस केस में जो है शीट पाइल्स प्रोवाइड करते हैं। तो शीट पाइल्स को जो है ये शीट पाइल्स जो है प्रोवाइड की जाती है। ये शीट पाइल को अगर हम उसका टॉप देखें तो वो इस तरह से होता है, इस तरह से वो शीट पाइल होती है, राइट, मेटेलिक शीट है, ओके। तो पहले इसको मशीन से वो क्या कहते हैं, ड्राइव करते हैं, राइट। जब एक हो जाता है तो दूसरा इसमें फंसा करके जो है फिर जो है इसको ड्राइव करते हैं। इस तरीके से ये लाइन बन जाती है अलोंग दी अक्रॉस दी स्ट्रक्चर, राइट। तो वो मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो है ये शीट पाइल्स है, राइट, जो कि लगाई जाती है। लेकिन ये 100% जो है आपका वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, स्टॉप नहीं करती हैं, लेकिन इसमें मटेरियल वॉश आउट नहीं होता है, राइट, ओके। तो ये शीट पाइल जो है मशीन से जो है ड्राइव की जाती है। जब जब ये शीट पाइल आपको ड्राइव हो गई, तो उसके बाद जो है यहाँ पे रिइंफोर्समेंट के साथ जो है इसकी जो आपका फ्लोर है उसको जो है ये बना दिया जाता है शीट पाइल को ड्राइव करने के बाद, राइट। तो इस तरीके से ये शीट पाइल ड्राइव की जाती है। और
ये कंसेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, यही कंसेप्ट जो है आपके सारे स्ट्रक्चर्स में और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में यूज होंगे, राइट? तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड the design of the structures founded on the pervious foundation with the protection works that is the loose protection. और loose protection देखिए ऐसा होता है कि इस तरह के structures में you have to keep watch. ये लूज प्रोटेक्शन जो है आपका कोई बिल्डिंग नहीं है कि वो नहीं गिरेगी, ये लूज प्रोटेक्शन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है दैट इज ए सेकंड लाइन ऑफ द यू सी द कुशन, सेकंड कुशन प्रोवाइड की जाती है कि स्ट्रक्चर आपका फेल ना हो। जैसे ही आपका लूज प्रोटेक्शन जो है अगर डैमेज होता है यू गेट इट रिपेयर्ड, राइट? तो ये प्रोविजन होता है जिसमें जो है आपको मेंटेनेंस का ग्रांट होती है और उसे उसको मेंटेन किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ द वाटर स्ट्रक्चर्स आर नॉट लाइक दिस कि आप एक बार इसको बना दीजिए और उसके बाद आप इसको भूल जाइए, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हैव ए वॉच ऑन द हाउ the river there or the whatever this water bodies that is behaving, okay, and how the structure is behaving, right? What is the response of the structure? तो water structures में ऐसा नहीं होता है ना, you have to have a watch on that part, okay, otherwise the structure will fail, okay? So now next time I will discuss with you a case study of the design of the barrage, and then we'll discuss the design of the other structures. Okay, sir, thank you. लास्ट चैप्टर का पीपीटी शेयर कर देंगे? हाँ, मैं भेज दूंगा इसको। ओके सर।